welcome everyone and hello to today's workshop. A very good evening, and I hope you all are doing fine at your houses. You all are safe within your and dear ones. So today's workshop, we all know it's on birds, and to be more precise, it's on waders. Now, today is International World Bird Migratory Day. Waders are definitely one of the birds who are uh, who are majorly into migrating. These are actually water birds which stay near the coastline. And to shed more light on this topic, today we have with us, yeah. So today we have with us Mr. Hemant Karkhanis. Now, Mr. Hemant, he holds a master's degree in entomology. Since 14 years, he's actually been working as an associate manager in the mangrove department of Godrej. And moreover, he also handles multiple roles as a mangrove biodiversity expert. On the field, he's an instructor. He's also a mangrove security observer. He is also engaged in various research projects in Godrej, in mangroves, and also he is guiding students for their BSc and MSc research. Moreover, he's conducted various educational programs on mangrove conservation in the last 15 years. And he also loves nature photography, and he's into that since quite a few years. Since Hemant sir, he's been organizing nature trails. He conducts these nature trails in various different parts of forests in Maharashtra for school students, for college students, and also for different NGOs. Moreover, he's also a resource person and a project guide for many schools and projects which he handles at school and college level. So, in a nutshell, he's a lecturer. He conducts seminars, workshops, research meets, international and national conferences on variety of topics related to birds. So it's a great thing to have Mr. Hemant with us here today. So I welcome Hemant sir to you on our workshop. Yeah, thank Uh, you, thank you. yeah. So I would like to hand over the workshop to Hemant sir. I'll just make a note before we start. It's a request that whatever questions everyone has, please put them on the chat box. And at the end of the session, we will ask all the questions to Hemant sir. And also today's session is going to be bilingual. मतलब हेमंत सर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्राई करेंगे ये सेशन कवर करने के लिए, ताकि हम सबको आसानी से समझ में आएंगे. So thank you, Hemant sir. Please, I hand over the thing to you. Thank you. Welcome. Thank you very much. And should I allowed to present the screen as Yeah, I yeah, sure. right? Okay. So, good afternoon, all of you, and here for uh, uh, the lecture. We are going to conduct this in the bilingual, as just told by Prakriti, and I will speak in Hindi also. And this will be interactive session, and because I'm going to ask many questions in between, so it is 100% allow कि आप आपका माइक चालू करें बीच में for the giving the answer and then again mute mode पे जाएं. I have chosen this topic of waders. Not only waders but water birds. अभी ये waders क्या है, water birds क्या है, वो हम लोग देखेंगे. Now, what is wader? Waders are the bird which generally have long legs. Then they have very dull body color. Most of them dull body color, and they can walk through shallow water. मतलब समुद्र में नहीं, not in the river, but they can live very comfortably in shallow water where there is a estuary, where there is a creek. मतलब हम उसको खाड़ी बोल सकते हैं. Now, वेड मतलब आपको ये दिखाई देगा स्क्रीन पे. It is to walk in shallow water. तो ये जो वाटर में जो बर्ड्स हैं वो वॉक करते हैं, उनको वेडर्स बोलते हैं.
देन वाटर बर्ड्स क्या है, जो मैंने पहले आपको बताया, वाटर बर्ड्स आर नॉट वेडर्स. वाटर बर्ड जो पानी के आजू बाजू में रह के उनकी रूटीन है वो पानी के आजू बाजू में डिपेंड होता है. मतलब पानी से फिश खाना या स्विम करना वो करते हैं, बट दे आर नॉट वेडर, दे नेवर वॉक इन शैलो वाटर्स. मतलब अगर आप लोग fish देखते हैं, if you consider brahmani kite, those are birds of prey. They are not waders, but they are water birds. Okay, so here in India and Asia, there are 210 species of wader as well as water birds. Now here I have one very small clip of roughly 20 seconds or 23 seconds. अभी क्या है, I have installed my camera at the bank of for 11 hours and time lapse photography मैंने की to show you how there is high tide and low tide takes place. We all know that high tide and low tide, Bharti, Oti, Jwar, Bhata, but we hardly see the movement of water. Here now get a chance to see this water movement. The last part of this small clip, you can see one or two wader birds are actually walking on the mud flat. अभी आपको mud flat नहीं दिखाई देगा, लेकिन just observe it carefully. Okay, just I'm playing it again. Let's see. Was it playing smoothly now? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes. So, okay, so at the end of the video, you had seen actually that mud flats, और उसके ऊपर कुछ मड्स के ऊपर फिश भी थे जिसको हम लोग न्यूटा या न्यूटी बोलते हैं. इन गुजराती इज कॉल्ड न्यूटी. And 2 or 3 wader birds were walking on the mud flat. Now, very important slide. You may or may not aware about flyway. Flyway मतलब क्या? I was talking with you about the flyways. Flyways are the path through which migratory birds mostly travel. So there are roughly, I will just figure it this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and this is the same. This is the same first wala. So like this, there are 10 flyways throughout the globe. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ दिस 10 फ्लाईवेज, ये एक, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. ये 3 फ्लाईवे हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रीजन से जाते हैं. सो जस्ट इमेजिन हाउ मच इंपॉर्टेंस वी हैव एज बर्ड और एवियन बायोडाइवर्सिटी. सो आउट ऑफ 10, तीन फ्लाईवे जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाते हैं. मतलब कितने माइग्रेटरी बर्ड हमारे आजू बाजू से जाते होंगे आप देखो. मेनली देयर आर 3 टाइप्स: आर्कटिक माइग्रेटरी, टेम्परेट माइग्रेटरी एंड ट्रॉपिकल, मतलब रेसिडेंशियल बर्ड्स जो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में ही रहते हैं. टेम्परेट मतलब द बर्ड्स विच फॉलो सर्टन ग्लोबल पैटर्न्स. मतलब क्या है, इक्वेटर का एक पैटर्न है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ का एक लाइन है, और आर्टिक मतलब पोलर रीजन. मतलब ये जो बर्ड है वो सबसे ज्यादा दूरी तक माइग्रेशन करते हैं. रफली 3000 किलोमीटर के ऊपर का वो माइग्रेशन करते हैं.
और सबसे कम या न के बराबर माइग्रेशन या रेसिडेंशियल ये ट्रॉपिकल बर्ड्स रहते हैं. Okay, so as they migrate throughout the globe, as they have diverse feeding habit, they have different types of modifications in their beaks. ये फ्लेमिंगो के बारे में हम लोग थोड़ी सी बाद में बात करेंगे. But here we will focus on some of the weather birds as well as some water birds. अभी फ्लावर का खाना क्या है, सैंड पैपर का क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ. फ्लेमिंगो के बारे में आपको बाद में बताऊंगा. फ्लावर इज अ बर्ड विच फीड अपॉन द मोलस्क, मतलब जो स्नेल वगैरह रहते हैं, बाइबॉल्स रहते हैं, द मोलस्क विच स्टे ऑन द टॉप ऑफ सैंड और मड, मतलब ऊपर की लेवल में जो दिखते हैं वो खाने वाले हैं. इसलिए उनकी बिग जो रहती है वो छोटी रहती है. ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनकी आई साइट बहुत अच्छी रहती है. नेक्स्ट इज सैंड पाइपर. सैंड पाइपर की फीडिंग हैबिट ऐसी है जो मड फ्लैट या सैंड के नीचे छुपे हुए एनिमल्स को खाते हैं, मतलब उनके वाइब्रेशंस उनको पता चलते हैं. इसलिए पेनिट्रेशन के लिए यू कैन सी देयर बिग्स आर pointing out as well as it is longer than this plover. और अगर वो जमीन के नीचे छुपे हुए एनिमल्स को खाते हैं तो आई साइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इसलिए यू कैन कंपेयर साइज ऑफ द आई विद द प्लावर बर्ड. आई बहुत छोटे रहते हैं, उनकी आंखें बहुत छोटी रहती है. स्पूनबिल इज अ बर्ड विच मेनली कंज्यूम फिशेस फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, मतलब जो मूवमेंट में है वो फिश खाने में इसकी प्रायोरिटी होती है. इसलिए उसकी जो बिग रहती है मैक्सिमम ग्रिप के लिए इट इज एडेप्टेड. पाइड एवोसेट, लुक द यूनिक शेप ऑफ द बिग. ये क्या करते हैं, रॉक्स एंड बाकी के जो सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम मतलब अदर आइटम्स और थिंग्स विच आर लेइंग ऑन मड फ्लैट्स और सैंड, उसके नीचे छुपे हुए एनिमल्स को खाते हैं स्कूप जैसे करके, मतलब वो अंदर से रेत निकाल के अंदर पेनिट्रेट्स उनकी बिक करके वो ढूंढ के खाते हैं. इसलिए इट इज मॉडिफाइड. ओपन बिल स्टोर, उसका मेन खाना है क्रस्टेशियंस, मतलब जिसके बहुत हार्ड कवच होते हैं, शेल्स होते हैं, उसको खाना. आप में से जो जो महाराष्ट्र ने उनको अड़कित्ता मालूम रहेगा, मतलब सुपारी फोड़ने के लिए जो यूज करते हैं, वो कैसे रहता है कि इतनी कड़क सुपारी, कैशू नट जो रहता है वो फोड़ती है वो, वैसे ही वो उसके शेल्स, कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का शेल फोड़ने के लिए इसकी बीक यूनिकली डेवलप होती है. पाइड एवोसेट से एग्जैक्टली उल्टी करल्यू, पानी में छुपे हुए अंदर के ड्यूरिंग हाई टाइड मड फ्लैट और रेत के नीचे छुपे हुए एनिमल्स को खाने के लिए वेरी वेरी लॉन्ग टैपरिंग एंड डाउनवर्ड कर्व्ड बीक उनकी रहती है. ये तो सबको मालूम है, इंडियन पॉन्ड हेरॉन छोटी छोटी मछलियां और इंसेक्ट खाने के लिए ये फेमस है. और फिश ईगल, ये तो आपको नाम से ही पता चलेगा, इट इज रैप्टर और बर्ड ऑफ प्रे, मतलब जो फ्लैश है वो फ्लैश टीयर करके फाड़ के खाने के लिए ये उसकी बीक बनी है. ओके, अभी एक बात रह गई. अभी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज इंटरेक्टिव सेशन. आपसे मुझे बहुत सारा व्हाट कॉल्ड एज इंटरेक्शन चाहिए. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, फ्लेमिंगो का मेन फूड क्या है? अनम्यूट कीजिए और बोलिए. वेरी गुड. और क्या? अलगी हुआ. और क्या हो सकता है? और एकदम छोटे क्रस्टेशियन जो सिर्फ सीव मतलब छलनी से मतलब अंदर बाहर जा सकते हैं. नाउ वेरी वेरी गुड. Initially few years back when I used to ask this question to participants कि फ्लेमिंगो का खाना क्या है, तो वो बोलते फिश.
अगर आप उसको फोर्सफुली फिश खाने को देंगे तो उसके वो नेक में चोकअप कर देगा, उसके थ्रोट में. ओके, सो हियर you can see some unique things in the beak. ये उसका लोअर पार्ट है. देखो, आप देखो फ्लेमिंगो कैसे स्कूप जैसे फीडिंग करते हैं, उसके नेक नीचे करते हैं और ये जो ऊपर का पार्ट है उनके बीक का वो नीचे टच करते हैं मड फ्लैट को, और मड फ्लैट यहाँ वहां वो मतलब वो बोलते हैं ना उसको डिस्टर्ब करते हैं, और जो पानी ऊपर आता है वो अपने अंदर लेके बीक में लेके ये माइक्रोस्कोपिक हेयर से वो पानी को फिल्टर करते हैं. जैसे हम लोग चाय के सीव से या छलनी से चाय पत्ती ऊपर रहती है और बाद में डिकॉक्शन बाहर निकलता है, वैसे ये माइन्यूट हेयर की वजह से पानी बाहर निकलता है, लेकिन अलगी जो है वो और उसके साथ क्रस्टेशियन जो माइक्रोस्कोपिक है वो अंदर रहते हैं और वो खाना खाते हैं. अगर मैं इसको फोटो को ज्यादा बड़ा कर सकूं तो ये उसकी नेक है और आगे उसकी बॉडी रहती है, मतलब वो अपसाइड डाउन उसकी बीक दिख रहे हैं अभी. नाउ एज आई टोल्ड यू, सैंडपाइपर एंड प्लावर एक साथ देखो दोनों का कैसे कैसे बिहेवियर है. माइग्रेटरी बर्ड है ये, लेकिन लॉन्ग माइग्रेटरी नहीं है, और जहां जहां जाता है वहां वहां लोगों को दिखते हैं तो टैगिंग वगैरह भी उसको करते रहते हैं. नाउ एज अगेन आई एम रिपीटिंग, सैंड या मड के ऊपर के एनिमल्स खाने वाला छोटी बीक बड़ी आय, छुपे हुए एनिमल्स को खाने वाला बड़ी बीक छोटी आय. अगर आप बर्डर हो, नए बर्डर हो और आपको ज्यादा वेडर समझ में नहीं आते, क्योंकि देखो मैंने बताया कि पहले की वेडर जो है ना, मोस्ट ऑफ द वेडर्स आर वेरी डल इन कलर. अभी यहाँ देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं. अगर इसको कोई ऊपर से देखेगा तो ये कलर और ये कलर, इसको अगर कोई ऊपर से देखेगा तो ये कलर और ये कलर मैच होता है, मतलब ये कैमोफ्लेज होते हैं. मतलब जो रैप्टर बर्ड है, बर्ड ऑफ प्रे है, हंटिंग करने वाले बर्ड है, उनको ये अच्छी तरह से दिखते नहीं. दूसरी बात, पानी से अगर कोई इसको देखेगा तो स्काई व्हाइट कलर का रहता है, बेली व्हाइट है. सेम हियर, अगर कोई फिश है इस बर्ड को खाने वाली, अगर वो इसको देखने चाहती है तो ये भी कंफ्यूज हो जाएगी कलर से. मतलब देखो, नेचर ने उनको जहां रहते हैं उनसे, वहां जो प्रीडेटर है उनसे बचने के लिए भी कलर पैटर्न दिए हुए हैं. मतलब देखो नेचर कितना अच्छा रोल प्ले करता है वो. अभी आपको मैं एक बताना बात भूल गया, मैं वही बता रहा था. अगर आप नए बर्डर है तो आपको ये दूर से सैंडपाइपर और प्लोवर देखने में और आइडेंटिफाई करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है. सो आई विल शो यू 5 to 10 सेकंड के 2 वीडियो जिससे आप सैंडपाइपर और प्लावर को डिस्टिंग्विश कर सकेंगे. लुक, सपोज देयर आर 50 बर्ड्स वेडिंग ऑन द मड फ्लैट. तो 50 में सैंडपाइपर और प्लावर को अगर आप पहले आइडेंटिफिकेशन में अगर आप दूर कर मतलब सेपरेट कर सकते हो तो आपका काम 50% सिंपल होगा. आपका जो फील्ड गाइड है, मतलब जो बुक है, कुछ भी है या ऐप है, उसमें डायरेक्टली आप सैंडपेपर का पार्ट निकाल सकते हो या प्लोवर का पार्ट निकाल सकते हो. देखो आगे का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. सैंडपेपर WTF करता है. अभी WTF क्या है वो आप यहां देखो. इट इज वॉक टू फीड. अगर कोई बर्ड ऐसे कर रहा है तो इट इज सैंडपेपर. ओके, मैं फिर से आपको अगर आपको मोशन बराबर नहीं होगी तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं. ये लुक हियर, वॉक टू फीड मतलब क्या. इट्स इन कंटिन्यू मोशन फॉर द फीड.
तो यही कॉमन सैंड पेपर विथ क्लोजअप। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देन प्लोवर की बात अलग ही है, 50% आपका आइडेंटिफिकेशन का काम हो गया। नाउ वी विल सी व्हाट प्लोवर इज डूइंग। वो तो एसएससी करता है। व्हाट इज एसएससी? स्टैंड, स्कैन एंड चेस। पहले देखेगा, अगर उसको कुछ मिलता है तो ही चेस करेगा और खाएगा। ओके, हैव यू नोटिस द डिफरेंस WTF एंड एसएससी में क्या है? अगर ये आप बराबर से ध्यान रखते हैं तो आपको आईडी में बहुत आसानी होगी अगर आप फील्ड पे जाते हो तो। ओके, सो दिस फोटो इज टेकन इन थानी क्रीक when I was in during one boat ride. पाइड एवोसेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लुक हाउ दिस बीक इज। तो दिस बीक इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर देयर यूनिक फीडिंग हैबिट। दिस इज कॉमन सीगल। ये सीगल जो है, एज आई टोल्ड यू कि वो आर्टिक माइग्रेटरी बर्ड की कैटेगरी में आता है एंड इट ट्रेवल्स thousands of kilometers during their migrating season. So this is winter migratory bird. This is black-headed seagull. This is common seagull, black-headed seagull. Now I want to tell you one very unique thing about these two gulls. Have you ever visited Queen's Necklace or Nariman Point or Taj Hotel का एरिया, जहां वो बहुत बड़ा सी लाइन है क्वींस नेकलेस का, और जहां वो कट्टा है, कट्टे पे सुबह सुबह बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक जॉगिंग के लिए आते थे। अभी थे क्योंकि वो कोविड की वजह से नहीं आते, लेकिन आते थे। एंड दैट टाइम आई हैव ऑब्जर्व दैट मेनी पीपल फीड दिस बर्ड्स विथ फरसान एंड गाठिया। जो सेव होती है वो बहुत बड़े बड़े पाउचेस में लाते हैं, और वो जो कट्टा जो है, वो वॉल जो है ऑफ क्वींस नेकलेस, वहां वो देते हैं, और hundreds of seagulls ये खाते हैं। Now all the participants, मुझे सिर्फ एक ये बताओ, हेलो, ओके, सो पार्टिसिपेंट मुझे एक बात ये बताओ कि द बर्ड विच फ्लाई फॉर मंथ्स थ्रू सी, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर सी के ऊपर ट्रेवल करता है, हार्डली कभी तो ह्यूमन इनहेबिटेंट्स के पास आता है, वो फिश का गाठिया, फरसान, सेवैया फूड है क्या? कि उसका फूड 100% फूड इज फिश। इफ यू आर फीडिंग देम विथ एंथ्रोपोजेनिक मटेरियल, मतलब ये सब बेसन है, मतलब दाल का पदार्थ है, या जो ऑयल में फ्राई किया है, तो ऑब्वियसली उनके बॉडी में डिवास्टेटिव फर्क हो जाएगा, और वो अगला उनका पूरा लाइफ स्पैन यू आर डिस्ट्रॉइंग। मैंने बहुत बार लोगों को बोला था, अरे बाबा ऐसे मत करो, तो वो बोलते नहीं नहीं हम पुण्य का काम कर रहे हैं। सो प्लीज, अगर नेचर ने उनको माइग्रेशन के लिए बोला है, वो अगर यहाँ आते हैं तो नेचर इज टेकिंग केयर। फिश सी में बहुत फिशेस है, उनको ये खाने के लिए मत दो प्लीज। अगर आपको भी ऐसा कुछ इंसिडेंट दिखता है, प्लीज ट्राई टू प्रिवेंट दोस इंसिडेंसेस। झगड़ा मत करो, लेकिन बोलो तो सही कि बाबा ये उनका खाना नहीं है। ओके, सो दिस इज अगेन टर्न, दिस इज अगेन very fast flyer bird. This look the shape of the wing, it is tapering, it is flat, and it is boat shape, much more aerodynamic than this seagull. ये बर्ड भी फास्ट फ्लायर है, और इनकी खास बात मतलब ड्यूरिंग द फ्लाइट जो बहुत हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं और ग्लाइड करते हैं, और तभी वो ग्लाइड में ही आधे घंटे के लिए वो सो भी जाते हैं, और जब भी उनके पैर या बॉडी या बेली उनकी सी के पानी को टच होती है, वो फिर से अवेक होते हैं, एंड देन अगेन दे फ्लाई। This is the largest wader bird, huge one.
टोटल उसका वेट है, इट इज 2.5 किलोग्राम। आप बोलेंगे अरे 2.5 किलोमीटर मतलब बहुत कम है, बट नो, वी ऑल नो बर्ड्स है हॉलो बोन, दे हैव फेदर, दे एयर सैक, तो उनका बाय डिफॉल्ट बॉडी का वेट कम ही होता है, उनकी बॉडी का साइज ज्यादा होता है। लेकिन अगर 2.5 केजी है तो बर्ड कितना बड़ा रहेगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। दिस इज अगेन अ कॉमन कर्ल्यू, जिसका मैंने बीच दिखाया था। ब्लैक विंग स्टिल्ट, कंटिन्यूसली ये मड फ्लैट में ही रहता है, नीचे भी आप देख सकते हो, चलता भी मड फ्लैट में है। जब भी हम लोग कभी मड फ्लैट में जाते हैं तभी जस्ट इमेजिन कंडीशन ऑफ आवर क्लोथेस, पूरा कीचड़ कीचड़ होता है, बट दो इज स्पेंडिंग होल लाइफ इन मड फ्लैट, लुक how clean it is. So again, it is 100% adapted for this climatic condition. This is again in the flight black wing still. Yeah, this I showed you during the unique adaptations in beak. This is again a very common bird in Thane Creek. Many times जो न्यू बर्डर है, ये अगर इस बर्ड को देखते हैं देन दे समटाइम्स कंफ्यूज विथ फ्लेमिंगो, क्योंकि दूर से फ्लेमिंगो जैसे दिखता है, पेंटेड स्टॉक है। मेनी टाइम 3, 4, 7, 9 ऐसे फ्लॉक में, नंबर के फ्लॉक में वो उड़ते रहते हैं, और मेनली उड़ते मतलब वो ग्लाइड करते हैं। The most common bird which is not wader, it is a pond heron. This is ये एडल्ट पॉन्ड हेरॉन है, इंडियन पॉन्ड हेरॉन। ब्लैक हेडेड आइबिस, एक जस्ट होल्ड ऑन, या सो दिस ब्लैक हेड आइबिस, ये भी विंटर माइग्रेटरी है। मेनली यू नो, हैव यू मोस्टली ऑफ यू माइट हर्ड अबाउट बर्ड रेस, जो बर्ड रेस होती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो ये ड्यूरिंग दिस ईयर 7 फरवरी को वो थी, तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं बर्ड रेस में। HSBC बर्ड रेस उसको बोलते हैं, HSBC मुंबई बर्ड रेस। पूरे इंडिया में अलग अलग मेन सिटीज में ये होती है। सो नेक्स्ट ईयर अगर आप जा सके तो प्लीज पार्टिसिपेट इन द बर्ड रेस, इट इज फ्री एंड यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू आउट डे का। कैटल लिग्रेट में ओके, फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, दोनों कैटल लिग्रेट है लेकिन दोनों में फर्क क्या है, बोलो। How this cattle ligrate is? Is in breeding plumage, one is in non-breeding plumage. Yeah, very good. This bird have breeding plumage. Again, this bird also have breeding plumage. ये जो है, ये पार्ट जो है, ये सिर्फ ब्रीडिंग प्लूमेज के टाइम ही आता है, और ये भांडुप पंपिंग स्टेशन में ये फोटो निकाला है। अगेन बोथ आर ग्रे हेरॉन्स, लेकिन दिन के अलग अलग टाइम में इन अलग अलग लाइट। या यहाँ 95% से ज्यादा फोटोग्राफ जो है वो यहाँ से, मतलब मैंने ही लिए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। अगर बाहर से कुछ होगा तो आई विल लेट यू नो। ये ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन जो है वो गोदरेज मैंग्रोव में निकाला है। ये का पेयर था, मेल और फीमेल का, और एक ही पेड़ पे बैठे थे दोनों जन। रिफ हिरॉन, ये फोटो निकाला है शिवड़ी को, जहां केरोसिन जेट्टी हुआ करती थी। अभी ड्यू टू दैट न्यू ब्रिज एंड रोड कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज क्लोज नाउ। ब्राह्मणी काइट, hardly you can see this flight at city area, but if you venture creeks, estuaries, mangroves, आपको ये दिखाई देगी। इतनी कॉमन भी नहीं है, लेकिन फ्लाइट में कम, बैठी भी ज्यादा दिखती है, बिकॉज इट जस्ट सर्च और स्कैन फॉर एनी फिश। ओके, अभी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है। लुक दिस सेकंड फोटो, कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लांट? आई नो दिस इज डिफिकल्ट, बट देन ऑल्सो ट्राई कर रहा हूं, आपसे आंसर मिलता है क्या? ये प्लांट कौन सा हो सकता है? मैंग्रोव। मैंग्रोव तो है 50% राइट आंसर, मुझे और यूनिक चाहिए। मैंने बोला था कि मैंग्रोव में अगर आप जाते हो तो आपको ये बर्ड दिखेगा। अगर आपको मैंग्रोव कुछ स्पीसीज या कुछ मालूम रहेगा तो ओके, आई एम गिविंग। या इट इज मुंबई
most dominant mangrove plant throughout Thane Creek, Ullas River, not Ullas River, अपना ये वेस्टर्न साइड में कौन सा है वो मिठी रिवर, यहाँ सब जगह, उसके बाद नालासोपारा में वसई क्रीक, सारे जगह यू कैन फाइंड दिस एविसिनिया मरीना, मतलब ग्रे मैंग्रोव, उसको मराठी में तिवर बोलते हैं. Okay, now something very, very unique. Have you seen these birds sitting like this? Many times, I think. Many मतलब 100 times. जहाँ जब आप ये bird देखते हो, 50% के ऊपर ये ऐसा ही बैठा रहता है. Now again one question आएगा. Can anyone give me the reason behind this? I think it is drying the. Yeah, but duck is also aquatic bird. Have you ever seen duck sitting like this? I think he's, They don't have wax. they don't have that oil glands. The wings, yeah, wings are not waterproof. प्रकृति, I think these all participants are very, very unique. और मुझे कहा तो तुमने अटकाया है. They are very, very clever. मुझे सब क्वेश्चन के एकदम यूनिक आंसर मिल रहे हैं. Very good. Yeah, these birds lacking sebaceous gland. Sebaceous gland मतलब it is called as oil gland. जो यहाँ रहती है. क्या होता है देखो, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. As soon as the bird enters into the water, within 5 minutes ये इतना सिंक होता है. अगर 5 मिनट से 10 मिनट होते तो इतना पानी के अंदर जाता है. उसके बाद 10 मिनट के आगे और वो वेट उसका बढ़ता है और पानी के अंदर जाता है. और 15 मिनट से ज्यादा अगर वो पानी के नीचे रहा तो उसको वो इतना उसका पानी सोख करता है कि वो फिर टेक ऑफ नहीं ले सकता. और फिर उसको बाजू के पेड़ के ब्रांच पे जाके उसको ड्राई होना पड़ता है. Contrary to duck have huge oil gland at near the tail region. तो उससे वो क्या करते हैं, ऑयल स्क्वीज करते हैं और फेदर्स के ऊपर उसका लेयर करते हैं. सो वाटर प्रूफिंग हो जाता है. एंड दिस वाटर प्रूफिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉर्मोरेंट्स एंड डार्टर्स एंड स्नेक बर्ड्स. स्नेक बर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो पानी से उसकी ऐसा ब्लैक कलर की नेक बाहर है तो सांप जैसे दिखता है. ये भी देखो. And in Marathi this is called as पाण कावळा. म्हणजे तो कावळ्याचा काळा दिसतो पण तो पाण्यात राहतो. So it is called as पाण कावळा. So this is a unique thing about this cormorant or snake bird और उसका बड़ा भाई darter. This is actually not osprey, it is fish eagle, and you can see actual catch of the fish here in these claws. और पीछे फ्लेमिंगोस उड़ रहे हैं. This is not wadder, but this is a water bird. This is a white-breasted water hen. It is called as pan कोंबड़ी. This is a very, very shy bird. और कोई भी उसको मतलब लगता है कि someone is staring this itself कि कोई भी बाहर से अगर देखता है उसको लगता है तो झट से वो छुप जाती है अंदर. तो उसको स्पॉट करना, फोटो निकालना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके पार्टिसिपेंट्स, फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है. एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आएंगे. रेडी हो जाना. माइग्रेटरी जो बर्ड है फ्लेमिंगोस, वो कितने टाइप के फ्लेमिंगो मुंबई में आते हैं? 2 types, greater and lesser. वेरी गुड. अभी ये जो सामने है 1 2 3 4, बाकी का छोड़ दो. ये कौन से है? ग्रेटर फ्लेमिंगो. क्यों? Long neck and So how you are comparing long neck with lesser flamingo? उनकी भी long neck रहती है. वो beak में Bigger size of beak. Bigger, देखो. Bigger size और smaller They are size. lesser because they are pink. सुनो. Wait. Bigger size, lesser size के लिए comparison होना चाहिए. उसके लिए आपका बाजू में दूसरा फ्लेमिंगो होना चाहिए जो दूसरे स्पीशीज का है. वो लेसर है एक्चुअली. ये लेसर है. Lesser flamingo, that they are pink in color. Basically, big color is which you can distinguish lesser and greater. ओके. तो बिग कलर से आपको क्या लग रहा है? Pink color is lesser. वेरी गुड. इट इज लेसर फ्लेमिंगो.
लेसर फ्लेमिंगो की बिग कलर जो है इट इज क्रिम्सन रेड, मतलब खून के कलर का लाल कलर रहता है. एंड इन केस ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो बिग इज कंप्लीटली लाइट पिंक. सेकंड थिंग, लेसर फ्लेमिंगो में ये आपको व्हाइट पैचेस नजर आएंगे बीच में. ग्रेटर फ्लेमिंगो में ये व्हाइट पैचेस नहीं रहते, दे यूनिफॉर्मली कलर्ड बर्ड्स. अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल हो भी नहीं सकता शायद. मुझे बताओ ये जो फ्लेमिंगो का जो कलर है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम, शायद यू मे नो, वो कैसे आता है पिंक? एल्गी खा के. कौन सी एल्गी? रेड. अच्छा छोड़ो. Shrimp कैरोटीन. ओके, अलगी में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जिससे वेरी गुड, कैरोटीन है. कौन सा कैरोटीन बोलो अभी? देखो जैसे, वेरी गुड. अभी तो ये शायद बहुत बढ़िया बैच है शायद मेरे लिए. सब परफेक्टली आंसर दे रहे हैं. ओके, तो वेरी गुड. बीटा कैरोटीन जो अलगी में होता है वो खाते हैं, वो उनके गट में जाता है, गट से ब्लड में जाता है, ब्लड से स्किन में जाता है, और स्किन से उनके बालों में, मतलब फेदर में जाता है. सो व्हेनेवर यू सी सम जुवेनाइल फ्लेमिंगोस, उनका ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ रहता, सो दे आर ग्रेइश एंड डल blackish and very light pinkish in color. Okay, so though these flamingos are very beautiful mind के लोग नहीं रहते, and continuously हमें calls आते रहते हैं कि इंजर्ड फ्लेमिंगो है, पैर टूटा हुआ फ्लेमिंगो है, विंग डैमेज हुआ फ्लेमिंगो है, and then we run for the rescue, then we hand over these flamingo to परेल का वेटरनरी हॉस्पिटल और ठाणे हॉस्पिटल और चेंबूर हॉस्पिटल. Now here there are two flamingos. I have kept them in my car. Both are greater flamingos. You can see color of the beak. As I told you, it is pink in color. Here you can see some what called a thread और रस्सी से उसके ये टाई किए हुए थे, फेदर्स टाई किए हुए थे. मतलब फ्लेमिंगोस का पोचिंग होता है. पोचिंग मतलब उनको मारते हैं. What they do at New Mumbai side, there are few restaurants, secretly they offer flamingo flesh to the customers. और उसका जो हमने वो स्टिंग ऑपरेशन में निकाला था, कुछ तो 1800 रुपीज पर केजी उसके फ्लेश का भाव रेट. वो भी कितना 3-4 साल पुरानी बात है ये. तो इससे उनका पोचिंग करते हैं. एंड यस्टरडे लास्ट वीक ऑल्सो आई गॉट कॉल कि एक फ्लेमिंगो का पर टूटा है. देन आई कॉल्ड वन एनजीओ कॉल्ड एज RAWW रॉ. आपको आप में से कुछ को मालूम भी रहेगा. तो पवन शर्मा अगर उसका एक मेन पर्सन है, उसका वो एनजीओ है. तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजी, एम्बुलेंस से उसको लेके गए. एंड व्हाट दे डू, यू नो दैट एयर गन, छर्रे का बंदूक रहता है ना, वो एयर गन जैसा जो कुछ इसमें क्या बोलती है उसको, राइफल शूटिंग के प्रैक्टिस में राइफल शूटिंग के लिए गुब्बारे फोड़ने के लिए होते हैं. तो वो गन से इनका कोचिंग होता है. और कभी कभी क्या होता है, उनका विंग की हड्डी टूटती है, पैर की हड्डी टूटती है, तो वो ऐसे पानी में ऐसे पड़े रहते हैं. तो जो कोली लोग है, फिशरमैन कम्युनिटी, दे कलेक्ट दिस बर्ड, पिक अप दोस बर्ड एंड दे सबमिट टू आवर डिपार्टमेंट, जो हम लोग गोदरेज मैंग्रो में काम करते हैं. और फिर आगे का उनका पूरा लाइफ सेविंग का हमारा सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. सो प्लीज आप में से कुछ लोग ऐसे काम करते भी होंगे अच्छा एनिमल्स के लिए. जो स्टूडेंट है उनको भी बोलता हूँ कि आपका पूरा जो लाइफ है ये एनिमल्स के रेस्क्यू में, एनिमल्स के लिए वेल बीइंग के लिए आप स्पेंड करो. आपको आगे जाके बहुत पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली मिलेगा. इफ यू रियली वांट टू एंजॉय नेचर, देयर आर फ्यू ऑप्शंस. सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो गोदरेज मैंग्रो. ऑब्वियसली मैं वहाँ मोर देन 14 ईयर्स से काम कर रहा हूँ. We have different types of theme gardens. We have aquarium. We have mangrove walk. We have watchtower. Everything we have.
We have dedicated nature trails for birding as well as macro photography. आपके लिए free of cost पूरा session होगा 2-3 घंटे का, and I'm going to conduct that session every time. तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन के बाद में जब ये सब नॉर्मल होता है कोविड से, तभी हम लोग ट्राई करेंगे. If you want boat ride, then there is one more option. You may be aware about Airoli Biodiversity Center, जो Airoli ब्रिज पार करने के तुरंत बाद है. वहाँ उनका गवर्नमेंट का फॉरेस्ट का ये है बायोडाइवर्सिटी सेंटर है. वहाँ वो बोट राइड भी है, उनका इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है. बोट 24 सीटर की बोट रहती है उनकी, और कुछ 350-400 रुपए पर पर्सन सीट उनका फेयर है. 1 घंटा घुमाते हैं फ्रॉम कांजूरमार्ग टू आयरोली एंड बैक. तो ये भी आप कर सकते हैं. इफ यू रियली वांट टू एंजॉय बर्डिंग, सुबह का टाइम इज द बेस्ट. ये भी एक्चुअल फोटो मैंने लिया है सुबह 6:30 बजे मैंग्रोव में. लुक, and ये विंटर सीजन में लिया था, तो यू कैन सी हाउ द फॉग इज increasing the beauty of the atmosphere. Definitely I will take you everywhere, और आप ऐसे ही फोटोग्राफी के साथ एंजॉय कर सकते हैं नेचर. और आई थिंक बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई रहेगी. आपसे भी बहुत बारी बात मैंने सीखी. गुड. मुझे अच्छा लगा कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. सो इंटरेक्टिव सेशन जो मुझे चाहिए था वैसे आपकी तरफ से हुआ. सो एग्जैक्टली इट्स 4:51 मैंने टाइम में खत्म किया है. दिस इज माय ईमेल एड्रेस hvk@godrej.com. हमारा ये भी है, लैंडलाइन का फोन नंबर भी है. यू कैन डायरेक्टली कॉल अस. सो थैंक यू. ये ऊपर का कुछ पढ़ो मत, ये तो हमारा पहले का एक सेशन था. सो थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. Sir, from the point of migration, what are the peculiarities or specialities of flamingos? Speciality means, look, some flamingos migrates from Gujarat, Kutch area, and some flamingos migrate from Siberia area. So peculiarity means, as they are birds, they can fly throughout thousands of kilometers. So migration के लिए जो peculiarity रहती है, वो तो mainly it is stamina ना, and long flight के लिए, तो उनमें वो होता है. और mainly कैसे they travel in the flock. तो अगर कोई बड़े raptor birds भी है तो भी उनसे उनका protection होता है. Okay, thank you. Hello. I've heard they breed in Kutch and come to Mumbai to feed. Exactly. But I've seen them also in East Africa. What do they do there in East Africa? Yeah, in 1 minute, just hold on. Yeah, in that David Attenborough ka that small video, he told ki throughout the globe you can find flamingos, but they do the same dance. So what he suggests, throughout the world, flamingos are there. They come from everywhere. They migrate from colder region to warmer region during winter time, and obviously they are of different types, different species. So hota hai, you can find flamingo everywhere. Okay. हेलो सर. Yes. सर एक पूछना था, ग्रेटर फ्लेमिंगो का जो जुवेनाइल है, हाँ, उसमें और लेसर फ्लेमिंगो में कंफ्यूजन कैसा ये करेगा? दिखने के लिए तो दोनों का जो लेकिन उनका प्लूमेज अलग रहता है. कैसे होता है, प्लूमेज ऑफ लेसर फ्लेमिंगो इज बाय डिफॉल्ट डार्कर देन ग्रेटर फ्लेमिंगो. तो उनमें जो पिगमेंटेशन पैटर्न है, यू कैन सी लेग्स, यू कैन सी बीक्स, यू कैन सी फेदर्स आल्सो. पिगमेंटेशन इज मच मोर डार्कर इन लेसर फ्लेमिंगोज देन ग्रेटर फ्लेमिंगो. सो यू कैन, अगर दोनों सेम साइज के या सेम एज के है, तो नॉट एज के, एज में ऑब्वियसली ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ा रहेगा, तो सेम साइज के, तो जो डार्कर रहेगा वो मोस्टली लेसर फ्लेमिंगो का जूनियर रहेगा. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. वेलकम.
Sir, can you give information about this Godrej visit? Yeah, I will just hold on. एक minute. Hold on. Just hold on. Yeah. Now you can just have my number. So you can directly call me. Yeah, I will give you my office number one more time: 022-6796-1097. This is my office number. Yeah, Sir, are you on WhatsApp as well on this number? yeah. So this is my email address. So you have three options to contact with me, and हम लोग सेशन फाइनल करेंगे, बुक करेंगे. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Amazing session. Thank Yeah, you. it was very nice. Very Do you have a WhatsApp group that you can we can all be in? Yes, we would also like to join. Yeah, and one more thing. Actually, I have my YouTube channel also, HK's Learning Point. Okay. HK's Learning Point, and on that YouTube channel, I have uploaded many videos on mangroves, biodiversity, and some lectures also. जैसे ये lecture लिया वैसे और पहले कुछ lectures मैंने upload किए, वो भी आप देखो. मतलब आपको normal general idea आ जाएगी कि अगर आपका mangrove से ज़्यादा contact नहीं है तो you can just have a look about small. मैंने 3-4 मिनट के वीडियोस डाले हैं. आपको मैंग्रोव के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपको समझेगी. सर ये गोदरेज विजिट ग्रुप आना पड़ेगा या इंडिविजुअल भी आ सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअल नहीं है. इट इज ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज वी आर स्पेंडिंग 2 to 3 hours फॉर दैट टाइम स्लॉट ऑन द फील्ड. तो हमारा ग्रुप साइज वेट आई एम टेलिंग यू, हमारा ग्रुप साइज जो है वो मिनिमम 15 का है, 15 एंड मैक्सिमम इज 40.